Java is good if I want a code that has to be portable. ठीक है, यानी कि अगर मैं एक मशीन से दूसरी मशीन में अपना कोड मूव करना चाहती हूँ तो C++ में और पाइथन में there is no inbuilt support, लेकिन जावा में मेरे पास ये सपोर्ट है कि if I have the JDK framework, that is if I install it, देन मेरा कोड मैक पे भी चलेगा, यूबंटू पे भी चलेगा, विंडोज पे भी चलेगा. तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक और मशीन स्पेसिफिक नहीं होता, दैट बिकम्स इंडिपेंडेंट. सो जो जावा के प्रोग्रामर्स हैं उनको ये पता है कि हम अगर जावा में लिखेंगे तो हमारा कोड जो है वो किसी भी एंड पे पोर्ट हो सकता है. तो हर लैंग्वेज की एक स्ट्रेंथ है और उस जिस तरह का आपने काम करना है उसके लिए पर्टिकुलर चॉइस ऑफ लैंग्वेज यू वुड पिक and use that language. May it be Ruby, may it be Perl, may it be Delphi. So there are many. इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो कि as a freelancer काम करते हैं. They work for US based companies. They work for Canadian companies. The average monthly salary जो हमारे developers और programmers की है, almost they are earning many more than 1K. And अगर कम से कम भी उनकी अर्निंग है तो दैट इज 60-65,000. रोबोट्स विल नॉट टेक ओवर अस, बट रोबोट्स आर हेल्पिंग अस. असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, रोबोट्स आर हेल्पिंग अस इन परफॉर्मिंग. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इट हैज टेकन ओवर द वर्ल्ड, कि हम इस चीज को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि AI इज एवरीथिंग. Assalamu alaikum and welcome to the second session of computer science. In the introductory session, we went through the subfields and applications and the scope of computer science in general. In today's session, we are going to dive deeper into the subfields and we are going to discuss one particular subfield, that is computer science, CS, foundations and principles. And for that, again, we are joined today by Asma. Assalamu alaikum, Asma. Alhamdulillah, Asma. So today we are going to discuss the subfield. The floor is yours. Please take it away. Walaikum assalam, Maham. Thank you for inviting me for this session. So, dear audience, in the last session, we discussed many subfields of computer science. Specifically, we discussed CS foundations and principles and information systems, BS in information systems. Then we discussed BS in computer engineering and BS in software engineering. So today, in this session, we are going to discuss CS foundation and principles into detail. So in the subfield of CS foundation and principles, basically this degree, bachelor's degree in CS, would help you in understanding the world around you. It would make you think computationally and it would develop problem solving skills of students. So the courses that the students study basically involve programming, introduction to programming. In the first semester, they are exposed to a simple programming language, simple programming constructs, pseudocode, designing flowcharts. And in the second semester, they build up upon their programming skills. So next semester में उनको object-oriented programming पढ़ाया जाता है. Then towards the third semester, they are exposed to data structures and algorithms. And that इस तरह से आप जैसे मैथ्स के स्टूडेंट्स को बेसिकली वी स्टार्ट फ्रॉम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड देन बिल्ड ऑन टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. और इसी तरीके से हम प्रोग्रामिंग के कोर्सेज को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक लॉजिक सॉल्विंग से स्टार्ट करते हैं, देन मूविंग ऑन टूवर्ड्स एल्गोरिथम्स, ठीक है, एडवांस्ड एल्गोरिथम्स एंड डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स. फिर उसके बाद दे स्टडी द कोर्सेज ऑफ डेटाबेसेस, दे स्टडी द कोर्सेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो इफ वी डिस्कस प्रोग्रामिंग, तो स्टूडेंट्स आर नॉट कंफर्टेबल विद प्रोग्रामिंग, क्योंकि जब आप कॉलेज के बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो OA लेवल्स के बैकग्राउंड से आते हैं, दे डू टेक कंप्यूटर साइंस एज अ कोर्स. बट इफ यू कम फ्रॉम एन इंटरमीडिएट बैकग्राउंड, तो कंप्यूटर साइंस के कोर्स आपने नहीं पढ़ा हुआ होता है. यू कम फ्रॉम मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड देन यू आर स्टक इनटू प्रोग्रामिंग, और आपको ये डराया जाता है कि जो प्रोग्रामिंग एक बहुत मुश्किल चीज है. देखिए, प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रोग्रामिंग बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, और जो स्टूडेंट्स मैथ्स के बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए प्रोग्रामिंग बहुत आसान है. इट इज जस्ट अ पीस ऑफ केक. इट इज जस्ट मेंटली आपको सोचना है कि इस प्रॉब्लम को मुझे टेकअप किस तरीके से करना है. तो प्रोग्रामिंग से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है. प्रोग्रामिंग कम्स बाय प्रैक्टिस, ठीक है. कुछ लोग होते हैं तो जल्दी से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेते हैं, एंड अदर पीपल फाइंड टेक सम टाइम
to study and they analyze that problem, but they do come up with a solution. तो ऐसा नहीं है कि हम फौरन से वो नहीं कर पा रहे, so we are weak in programming. No, we need to develop on our basic skills. अच्छा, programming की there are multiple choices, multiple languages that are available. There are C, C++, जो कि अब बहुत पुरानी languages consider की जाती हैं. Obsolete मैं नहीं कहूँगी इसलिए कि पुरानी in the sense कि we will always need C and C++ to sharpen our programming skills. जितनी भी नई languages आएंगी हमें हमेशा उनको C और C++ के ही उसमें रहते हुए हम यानी उनको define कर सकते हैं, उन constructs को. और Python जो latest programming language है, इसी तरह हमारे पास एक programming language है Java. तो कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो C और C++ को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज प्रेफर करती हैं, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अदर लैंग्वेज जावा, एंड देन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम में कोई और लैंग्वेज. कुछ यूनिवर्सिटीज का ये रूटीन है कि दे टेक अप अ सिंपल एक सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पिक करती हैं और उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थ्रू आउट आप 3 सेमेस्टर्स तक उसी में कोड करते हैं. अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नॉट इशू, ठीक है, यानी कि अगर मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है तो मैं किसी भी लैंग्वेज में कर सकती हूँ. सो लैंग्वेज जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, आई कैन पिक अप दैट लैंग्वेज. सो लैंग्वेज इज नॉट एन इशू. तो अगर आपको C++ आसान लगती है, जस्ट पिक इट अप एंड डू इट. बहुत सारी चीजें C++ में अवेलेबल हैं जो हमारे पास अदर हाई लेवल लैंग्वेजेस में अवेलेबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे हार्डवेयर प्रोग्रामिंग करनी है, डिवाइस ड्राइवर्स बनाने हैं, कोई रोबोटिक आर्म है जिसको मुझे मशीन के साथ कम्युनिकेट करना है, दैट कैन बी डन इन C++ नेटिव लैंग्वेज, उन लैंग्वेजेस में जो शुरू से इस तरह के डिजाइंड है. अगर मुझे डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स करना है तो पाइथन में मेरे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं दैट कैन हेल्प मी आउट. सिमिलरली जावा इज गुड if I want a code that has to be portable, ठीक है, यानी कि अगर मैं एक मशीन से दूसरी मशीन में अपना कोड मूव करना चाहती हूँ तो C++ में और पाइथन में there is no inbuilt support. लेकिन जावा में मेरे पास ये सपोर्ट है कि if I have the JDK framework, that is if I install it, then मेरा कोड मैक पे भी चलेगा, यूबंटू पे भी चलेगा, विंडोज पे भी चलेगा. तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक और मशीन स्पेसिफिक नहीं होता, दैट बिकम्स इंडिपेंडेंट. सो जो जावा के प्रोग्रामर्स हैं उनको ये पता है कि हम अगर जावा में लिखेंगे तो हमारा कोड जो है वो किसी भी एंड पे पोर्ट हो सकता है. तो हर लैंग्वेज की एक स्ट्रेंथ है और उस जिस तरह का आपने काम करना है उसके लिए पर्टिकुलर चॉइस ऑफ लैंग्वेज यू वुड पिक and use that language. May it be Ruby, may it be Perl, may it be Delphi. So there are many options available. So these are some of the popular programming languages that are being taught at university level. इसमें आपको JavaScript, HTML और CSS सबसे टॉप पे नजर आएगा. One thing we need to understand कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो फ्रंट एंड डिजाइन करने के लिए लिखी जाती हैं. कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो बैकएंड के लिए लिखी जाती हैं. सो जावास्क्रिप्ट एंड HTML CSS आप अगर वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, वेब पेज बना रहे हैं, सो दे वुड बी योर चॉइस, क्योंकि फ्रंट एंड पे आपको यूजर को जो बटन्स दिखाना है, जो इंटरफेस दिखाना है, दैट वुड बेसिकली इन जावास्क्रिप्ट एंड HTML CSS. बैकएंड प्रोग्रामिंग के लिए we have Python, we have Java, we have C#, we have C++, we have, ठीक है. एंड अगर उनका डेटाबेस स्टोर करने के लिए, यानी कि वो जो डेटा जो कस्टमर या जो फीडबैक फॉर्म आप फिल करवा रहे हैं तो वो डेटा एक्चुअली जा कहाँ रहा है, उसके लिए आपको चाहिए SQL, PHP, PowerShell, ये सब चीजें आपको उसके लिए चाहिए. अच्छा, आज एक टर्म बहुत ज्यादा यूज हो रही है, फुल स्टैक डेवलपर्स, ठीक है. तो कुछ डेवलपर्स हैं, किसी को फ्रंट एंड अपील करता है, कोई ग्राफिक्स डिजाइनिंग या फ्रंट एंड में उसको ज्यादा कंफर्टेबल है, तो दे आर फ्रंट एंड डेवलपर्स. कुछ लोग बैक एंड की लॉजिक बहुत अच्छी लिखते हैं तो देयर फील्ड इज बैक एंड डेवलपमेंट. कुछ लोग डेटाबेस बहुत अच्छा डिजाइन करते हैं जिसकी हम अभी बात करेंगे, सो दे आर डेटाबेस डेवलपर्स. फुल स्टैक डेवलपर्स वो हैं जो सब काम करते हैं, ठीक है, यानी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं. वो फ्रंट एंड भी करते हैं, वो बैक एंड भी करते हैं, वो डेटाबेस डेवलपमेंट. तो फुल स्टैक डेवलपमेंट के बहुत सारे कोर्सेज हो रहे हैं जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट्स 4 months, 5 months, 6 months के कोर्सेज कराते हैं. और अगर नहीं भी तो ऑनलाइन देयर आर मेनी रिसोर्सेज अवेलेबल. हम अभी डिस्कस करते हैं कि बहुत सारी ऑनलाइन प्रोग्रामिंग की वेबसाइट्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर लर्निंग पर्पस, ठीक है. सिर्फ आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए, वो सीखने की लगन होनी चाहिए, वो तड़प होनी चाहिए. प्रोग्रामिंग इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. फॉर एग्जाम्पल,
Let's say if I go to code.org, so code.org is a very simple site. बहुत छोटे grade के level के students भी आप उनको सिखाते इस तरीके से. For example, a turtle moves. If you have to teach them to move forward, move backward, move into a loop, तो कोई एनिमेशन होगी और सिंपल वो एनिमेशन वो काम कर रही होगी, वो परफॉर्म करेगी. अगर वो फेल होगी तो द स्टूडेंट वुड नो कि हाँ ये सही काम नहीं कर रही, आई नीड टू फिक्स द कोड. और कोड में भी ब्लॉक्स इस तरह जैसे स्क्रैच की तरह, एलिस की तरह, यू जस्ट हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप. इसमें कोई प्रोग्रामिंग आप रिटन प्रोग्रामिंग नहीं करे, यू जस्ट स्टडी बाय picking up the image and dropping it and then seeing whether it works or not. इसी तरह कोड अकेडमी है हमारे पास. कोड अकेडमी के बहुत सारे कोर्सेज हैं, डिफरेंट लेवल्स पर वो सिखाते हैं. खान अकेडमी इज अ वेल नोन नेम, वो भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं एंड दे हैव मेनी कोर्सेज दैट आर बीइंग ऑफर्ड. रिसेंटली HEC ने एक इनिशिएटिव लिया है. दे yesterday just in January, first week of January, they organized, उन्होंने सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है. HEC ने कोर्सेरा के साथ एक MOU टाइप ऑफ साइन किया है. इसमें कोर्सेरा के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि अपने स्टूडेंट्स के लिए, मतलब ये पेड कोर्सेज हैं, इनकी जो फीस है वो डॉलर्स में होती है. तो HEC ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ये फी वेवर के लिए कि आप कोर्सेरा के कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनमें आप एनरोल हो सकते हैं. तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है जो HEC की वेबसाइट से आपको मिल जाएगी कि कोर्सेरा के कौन कौन से कोर्सेज हैं जो मैं फॉर फ्री अवेल कर सकती हूँ या अवेल कर सकता हूँ. इसी तरह लर्न पाइथन एक रिसोर्स है, बहुत हैंडी रिसोर्स है. इसी तरह स्टूडेंट्स को जब हम जावा सिखाते हैं तो एक वेबसाइट है बहुत अच्छी, codingbat.com. उसमें आप जावा भी सीख सकते हैं, पाइथन भी सीख सकते हैं. उसमें इंटरफेस इस तरीके का है कि यू हैव अ बॉक्स लाइक इंटरफेस, यू राइट योर पीस ऑफ कोड इनटू इट, और जब आप उसको रन करते हैं तो वो मल्टीपल टेस्ट केसेस पर उसको चलाता है. सो लेट्स से आप कोई भी लॉजिक लिख रहे हैं तो उसको सारे केसेस पर वैलिडेट करता है. जो जो केसेस पास करता है उनको ग्रीन से चेक करता है, और जो जो केसेस फेल होते हैं उनमें रेड से क्रॉसेस आते हैं. सो रेड क्रॉसेस से स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि मुझे इस एरर को फिक्स करना है, और ग्रीन से पता चलेगा कि ये सारे टेस्ट केसेस को सेटिस्फाई करता है या नहीं. इसी तरह सीक्वल, जो आपके पास डेटाबेस की लैंग्वेज है, उसको लर्न करने के लिए हमारे पास सीक्वल जू के नाम से एक बहुत अच्छी किट मौजूद है. उसमें सारे सीक्वल के ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं. यू कैन राइट ऑल द SQL स्टेटमेंट्स, ऑल द क्वेरीज. सो ऑनलाइन हर चीज अवेलेबल है. यू जस्ट नीड टू गो इन गूगल वट एवर इंफॉर्मेशन यू नीड. अच्छा, एक और चीज की यूनिवर्सिटीज आपको टूल्स नहीं सिखाती. यूनिवर्सिटीज आपको ये नहीं सिखाती कि जावा की ही प्रोग्रामिंग करें, आप सिर्फ बस इसी को पिक करें और किसी और चीज को पिक ना करें. यूनिवर्सिटी आपको जो है वो स्किल सेट देती है. उसके बाद आप कोई भी लैंग्वेज पिक करना चाहे ऑफ योर चॉइस. लेट्स से आप कहें कि मुझे तो टीचर ने पढ़ाया ही नहीं, तो सिखाया नहीं, तो ये नहीं है. ये यूनिवर्सिटी के टीचर का काम आपको डिप्लोमा देना नहीं. यूनिवर्सिटी का टीचर आपको गाइड करेगा. लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस आप खुद पिक करेंगे, और जो भी लैंग्वेज आप पिक करेंगे उसमें फिर आप बहुत सारी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं. तो यूनिवर्सिटी का काम आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को डेवलप करना है. ठीक है, लैंग्वेज इश्यू नहीं है. वह होता है कि स्टूडेंट जब ग्रेजुएट करते हैं तो वो लैंग्वेजेस जो उन्होंने पढ़ी होती है उसके बाद उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. जो इस ऑप्शन में वो सॉफ्टवेयर हाउस काम कर रहा होता है, उनको जो एक्सपोजर मिलता है वो माशाल्लाह क्विक इनफ होते हैं, ग्रास्प कर लेते हैं उस कॉन्सेप्ट को कि भाई इस लैंग्वेज में ये काम किस तरीके से हो रहा है, ये वही चीज है जो हमने सीखी थी. और वो उसको थोड़े से दिन, विद इन फ्यू डेज, विद इन वीक्स, 15 डेज मैक्सिमम में वो चीज पिक कर लेते हैं एंड दे लर्न. सो दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस. और IT में, प्रोग्रामिंग में कभी ऐसा नहीं होगा कि हम कहें कि जो है वो नई चीज है, मैं तो नहीं सीख सकता, मुझे तो कभी नहीं पढ़ाई गई, इसके अलावा तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता. सो यू कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस. जब आप टेक्नोलॉजी चेंज होती है, सो यू हैव टू टेक अप द चेंज, यू हैव टू मूव ऑन. आज हम जिस दौर में हैं, इन कमिंग ईयर्स हम इससे और टेक्नोलॉजी इससे ज्यादा एडवांस हो जाएगी. सो इफ वी आर नॉट ग्रास्पिंग, वी आर नॉट लर्निंग, वी आर नॉट पिकिंग अप न्यू थिंग्स, तो हम पीछे रह जाएंगे, लोग आगे निकल जाएंगे. ठीक है, इसी तरह किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट से भी कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब सिर्फ यूनिवर्सिटी का एक लेबल है और एक नाम है, बट इफ यू आर गुड एट योर स्किल्स तो द डिग्री डज नॉट मैटर. मतलब आपको चीज आनी चाहिए, दैट मैटर्स. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे जो है वो मेरी इस यूनिवर्सिटी की डिग्री है या वो बात, सब पीछे रह जाती है जब आपको वो चीज आती है. दैट इज इम्पोर्टेंट. सो ये मैंने एक ग्राफ देखा था
यूएस जॉब मार्केट का, कि आपके पास कंप्यूटिंग स्टेम एजुकेशन में देयर कम्स कंप्यूटिंग, इंजीनियरिंग, फिजिकल साइंसेज, लाइफ साइंसेज एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इनमें अगर आप देखें तो ये जो ब्लू है ये टोटल जॉब ओपनिंग्स है, और जो ये आपके पास येलो बार्स है, दीज आर द बैचलर्स डिग्रीज जो कि अवॉर्डेड हैं, करंटली स्टूडेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। सो यू कैन सी अ वाइड गैप। कंप्यूटिंग में आप देखें कि कितनी ज्यादा जॉब ओपनिंग्स है, and there are very less graduates that are satisfying. लेकिन engineering में you can see that there are less jobs available, but there are many graduates that are being produced. Similar is for life sciences, similar is for mathematics, and similar is for physical sciences. So you can easily see कि इस वक्त हमारे पास जो computing end है, जो कंप्यूटर साइंस है, उसमें कितनी ज्यादा स्कोप है कि हम इसमें ग्रो कर सकते हैं, एंड देयर वुड बी कमिंग मोर एंड मोर ग्रेजुएट्स वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द यूनिवर्सिटीज, एंड देयर वुड बी मोर एंड मोर जॉब्स दैट वुड बी अवेलेबल। अच्छा, यूएस मार्केट के हमारे पास डेटा इजीली अवेलेबल होता है, पाकिस्तानी मार्केट का यूजुअली हमारे पास नहीं होता है। लेकिन यूएस का फायदा ये है कि देयर आर मेनी कंपनीज दैट आउटसोर्स देयर टास्क टू अस थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। हमारे पास पाकिस्तान के पास, बांग्लादेश के पास, इंडिया के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, लोग बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, तो वो अपना काम आउटसोर्स करते हैं। उनको कॉस्टली भी, उनको कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, इसलिए भी आउटसोर्स करते हैं, और इसलिए भी आउटसोर्स करते हैं कि हमारे लोग ज्यादा शार्प हैं, वो उस काम को ज्यादा जल्दी कर लेते हैं। सो इसीलिए हम ये देख सकते हैं कि वहां से अगर हमारे पास जॉब आ रहा है तो हमारे पास यहाँ पे अगर ग्रेजुएट्स हैं, सो दे कैन फुलफिल दोज। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो कि एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं, दे वर्क फॉर यूएस बेस्ड कंपनीज, दे वर्क फॉर कैनेडियन कंपनीज, ठीक है। तो बाहर की कंपनीज के लिए, यूके बेस्ड कंपनीज के लिए वो काम कर रहे थे, तो चूंकि वो हमारे फ्रीलांसर्स हैं, सो दे वुड आल्सो हैव द अपॉर्चुनिटीज टू वर्क इन दिस डोमेन एज वेल। सिमिलरली अगर पाकिस्तान की मार्केट का देखें तो मुझे एक ये ग्राफ पाकिस्तान का मिला था, एवरेज मंथली सैलरी जो हमारे डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स की है, ऑलमोस्ट दे आर अर्निंग मेनी मोर देन 1K, एंड अगर कम से कम भी उनकी अर्निंग है तो दैट इज 60-65,000। जब आप इनिशियली मार्केट में जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, सो 65,000 इज एन अमाउंट विद विच यू आर स्टार्टिंग, एंड वंस यू आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स हायर फील्ड, आप आगे जा रहे हैं, सो यू आर अर्निंग मोर। जब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की उसमें आ जाएंगे, यानी कि यू बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर अंडर विच यू हैव मेनी projects to deal with, so that varies from company to company, that varies from project to project, and this is just an average analysis of the job market of Pakistan. फिर हमने बात की algorithms के कोर्स की। तो प्रोग्रामिंग के कोर्स में तो ये कि if I am a good programmer, this programming skills would help me in my job market as well, जो काम मैं कर रही हूँ। लेकिन let's say if I have to in my job I face a problem कि इसमें से मुझे ये solution तो है, I come up with a solution, but if I have to come up with an efficient solution, let's say कि हम एक example लेते हैं कि हमारे पास Google Maps की API अवेलेबल है, एंड Google Maps में हम ये ट्रैक कर सकते हैं कि यहाँ से शॉर्टेस्ट पाथ के सोर्स, पर्टिकुलर सोर्स A से डेस्टिनेशन D तक जाने का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। लेकिन इफ शॉर्टेस्ट पाथ इज अवेलेबल तो मेरा एल्गोरिथम होगा जो मुझे शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूट करके देगा, एंड देन आई कैन राउट माय टीम कि हमें यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है थ्रू दिस शॉर्टेस्ट पाथ। लेकिन लेट्स से कि वो शॉर्टेस्ट पाथ कहीं से ब्रोकन है, वहां से लिंक कहीं से, अब मैं अगर वो शॉर्टेस्ट रूट लेती भी हूँ तो भी मैं अपनी डेस्टिनेशन डी तक नहीं पहुंच सकती। तो माय एल्गोरिथम शुड बी मेकिंग स्मार्ट डिसीजंस कि अगर मेरा रूट कट है, so it should tell me कि है although this was the shortest path that was available, क्योंकि वो लिंक या रोड मौजूद था, लेकिन let's say after floods या after some accident या किसी और हादसे की वजह से अब वो रास्ता नहीं रहा। so एल्गोरिथम आपके पास, एल्गोरिथम एनालिसिस वो फील्ड है जो डिस्कस करता है कि हाउ डू आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द एफिशिएंट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द रन टाइम दैट इज इन्वॉल्व, यानी टाइम मुझे कितना लगेगा। अब वो शॉर्टेस्ट पाथ तो था लेकिन दैट शॉर्टेस्ट पाथ इज नो मोर अवेलेबल, सो आई हैव टू पिक अप सम अदर पाथ, लॉन्ग पाथ। तो ये एल्गोरिथम्स में हम इस चीज को एनालाइज करते हैं, यानी प्रोग्रामेटिकली आपने बिल्कुल सही उसको अप्रोच किया अपने प्रॉब्लम को, लेकिन अब उस प्रॉब्लम को रीमैप करने की जरूरत है बिकॉज इनिशियली आपका जो इशू है वो चेंज हो चुका है। सिमिलरली तो एल्गोरिथम एनालिसिस एक लेवल एडवांस्ड है, मतलब प्रोग्रामिंग जब आपको आती है देन एल्गोरिथम एनालिसिस इज कंप्यूटेशन ऑफ रनिंग टाइम ऑफ दोज प्रोग्राम्स टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन। लेट्स से आई एम नॉट गुड एट प्रोग्रामिंग, ठीक है, हमने बात की फ्रंट एंड भी है बैक एंड भी है, लेकिन मुझे डेटाबेस समझ में आता है,
मुझे डेटा स्टोर करना समझ में आता है, मुझे डेटा रिट्रीव करना समझ में आता है, मुझे एसक्यूएल यानी कि हमारे पास एसक्यूएल हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, क्वेरी लैंग्वेज है। क्वेरी का मतलब है कि आप डेटाबेस में से कोई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। सो इसके लिए हमारे पास एसक्यूएल भी है, उनके कॉम्पिटिटर्स ऑरेकल भी है। इसी तरह एसक्यूएल का एक लाइटर वर्जन है जो कि आपके पास फ्रंट एंड पे चलता है, दैट इज माईएसक्यूएल। तो ये लाइटर वर्जन भी है। नाउ मुझे डेवलपमेंट फ्रंट एंड CSS HTML जावास्क्रिप्ट कोई और करेगा, उसमें मुझे जो पार्ट है वो ये कि आई हैव टू डू द डेटाबेस डेवलप, आई हैव टू डू द डेटाबेस एंड आई हैव टू बी द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो मुझे वो क्वेरीज लिखनी होंगी, डेटा किस तरह से स्टोर किया जाए, डेटा किस तरह से रिट्रीव किया जाए, ठीक है, डेटा को किस तरह से प्रोसेस किया जाए। सो अगर मैं इसमें अच्छी हूँ, इस कोर्स में अच्छी हूँ, तो जरूरी नहीं मैं फ्रंट एंड बैक एंड में अच्छी हूँ, लेकिन आई कैन बी अ गुड डेटाबेस डेवलपर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। सो देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर मी टू फिट इन। जो कोर्स मुझे समझ में आता है, आई कैन पिक अप दैट कोर्स एंड आई कैन एक्सेल इन दैट फील्ड। सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वाओ, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इट हैज टेकन ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। हम कह सकते हैं कि बहुत लेट, जब वो 1960s में there was the word was, the term was coined, तो उस वक्त ये था कि the issue was that we did not have the computation speed, we did not have the computation power कि हम इस चीज को अप्रिशिएट करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वुड बी ऑफ सो मच यूज टू अस। बट थैंक्स टू द साइंटिस्ट कि उन्होंने इस टर्म को कॉइन करने के बाद गिव अप नहीं किया। दे केप्ट ऑन प्रोड्यूसिंग, यानी नए नए आइडियाज देना, ठीक है, नए नए वेज से चलना, जब तक कि हमारे पास वो कंप्यूटेशनल पावर आती जैसे कि आज है कि हम इस चीज को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि AI इज एवरीथिंग। अच्छा, सो इफ वी टॉक अबाउट AI, वी सी ऑल द पॉसिबल एप्लीकेशंस। बहुत से टर्म्स आपके लिए नहीं होंगी, फॉर एग्जांपल डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है, इसी तरह ग्राफ एनालिटिक्स, इमेज एनालिटिक्स, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स एंड सॉफ्ट रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, सोशल नेटवर्क एनालिसिस, ठीक है। तो ये सारी सिमुलेशन एंड मॉडलिंग। तो AI में आप समझिए एक तरह से इट इज अ मदर ऑफ ऑल दीज सब फील्ड्स। और हर एक जो सब फील्ड है इट सेल्फ, ठीक है, एक पूरा एरिया है। लेट्स से अगर इफ आई वांट कि मैं वीडियोस को प्रोसेस कर सकूं और कोई मीनिंगफुल चीज एक्सट्रैक्ट कर सकूं, दैट इज डीप लर्निंग। अगर मैं ह्यूमन लैंग्वेजेस को प्रोसेस करना चाह रही हूँ, लेट्स से डेफ एंड डम की लैंग्वेज को प्रोसेस करना चाह रही हूँ और उसको इंटरप्रेट करना चाह रही हूँ, या चाइनीज लैंग्वेज को समझना चाह रही हूँ, या पर्शियन, तो गूगल ट्रांसलेट कितना आसान है। सो इट इज टेकिंग अप द नेचुरल लैंग्वेज and it is translating it to another natural language. So how is it doing so? इसी तरह हमारे पास बहुत सारी लिफ्ट्स ऐसी हैं, कुछ डेवलप हुई हैं, जिसमें you tell the floor number and it takes you to that floor. So that is doing speech recognition. Speech recognition या audio analytics again comes under artificial intelligence. इसी तरह अब हमारे पास सोशल मीडिया पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें हम लोगों से सोशलाइज करते हैं, वी मेक अ नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स। सो हमारा नेटवर्क किसी और नेटवर्क से कनेक्टेड है एंड देन कनेक्टेड फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, तो दैट इज माय सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क का एनालिसिस करना इसलिए जरूरी है जस्ट टू आइडेंटिफाई कि कौन से सेलिब्रिटीज हैं, कौन से लिंक्स हैं, कौन से लोग हैं जिनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, ताकि जो मार्केटिंग वाले हैं वो उनको अप्रोच करते हैं फॉर देयर प्रोडक्ट्स, दे अप्रोच देम फॉर देयर थिंग्स जस्ट टू सेल इट। सो दिस सोशल नेटवर्क एनालिसिस इज हेल्पिंग सेल्स पीपल, इट इज हेल्पिंग द मार्केटिंग पीपल। इसी तरह हमारे पास मशीन लर्निंग में वी आर एबल टू प्रिडिक्ट, ठीक है, हम प्रिडिक्ट कर सकें कि कल का वेदर कैसा होगा, अगर ये मैच था इसके पास रिजल्ट्स ऐसे थे, अगर टीम्स आपस में खेली थी तो अब आगे क्या होगा। तो प्रिडिक्शंस आर बेस्ड ऑन सेट डेटा सेट एंड दैट इज ऑल डन इन मशीन लर्निंग। और रोबोटिक्स एंड सॉफ्ट रोबोटिक्स, इट इज जस्ट असिस्टिंग अस इन एवरीथिंग. Robots will not take over us, but robots are helping us. Assistive technologies, robots are helping us in performing jobs. So AI आप कहें कि एक पूरी field है, and if I am landing in AI, I am landing into a safe hand. So I would, this is my domain. I would like to have another session with you so that I can explain each and everything in detail. बट ऑब्वियसली इट इज अप टू अस कि हम कौन सी चीज को पिक करते हैं, कौन सी चीज हमें इंस्पायर करती है. एंड आई होप इन द नेक्स्ट सेशन महम वी वुड बी एबल टू डिस्कस दिस इन मोर डिटेल. ओवर टू यू महम. Jazakillah Asma for such an informative session. Yes, inshallah, sure. Since AI is growing,
and AI is booming and AI is for the next generation. We'll definitely, inshallah, cover this in our next session. If you have any questions, if you have any comments, please drop in the comment section, and inshallah, we'll get back to you as soon as possible. So until next time, Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullah.